As you know, the geriatric populations are increasing all over the world, including our world, and their care is very much important. To discuss all this, today we have Professor Manju Chogani. Professor Chogani is Dean of School of Nursing Sciences and Allied Health, and she is from Jamia Hamdard University. And Professor Chogani, these sessions will discuss about this how to scale them, their psychiatric assessment, and how to measure different kind of vital signs, and how it is important in day-to-day practice. I think this kind of things can be done by any layman persons who are close to that person. He may not be highly trained, but he need to know something basic things. So not wasting much time here, I would like to request Professor Manju Chogani to discuss about these different component of the psychiatric assessment as well as the vital signs assessment. Thank you. So for not psychiatric, I would say that it is a geriatric depression scale in which we have to ask these geriatric or elderly people that are you basically satisfied with your life? Have you dropped many of your activities which you were very much interested once upon a time? Do you feel that life is empty? Do you often get bored? Are you in good spirit most of the time? Are you afraid that something bad is going to happen, or you feel most of the time that you feel happy? So they will tell you about these things, and you have to just mark yes or no on this scale, which you can see on the screen. And then after asking these 15 questions or points, you have to give the score as the score is written below. Some statements are positive, some are negative. So accordingly, you have to give marks and see that if they are having score 7 plus minus 3, mildly depressed. If they are normal, 3 plus minus 2, and very depressed, 12 plus minus 2. So this is how you can make out. Anybody can use this scale and find out whether the person is very depressed, normal, or mildly depressed. And then the key activities also. And then more important is your vital signs. You have to see vital signs and weight. So first, let's see the weight, how you have to take weight. Weight you have to check in kgs, kilograms. And when you are taking a weight, you have to set the 0. You have to be careful that on the scale, weighing scale, you have to set the 0 before asking the client to come on the scale. Then try to remove all extra clothes, chappals, shoes, whatever they are wearing, and extra jewelry. Sometimes ladies are wearing very heavy jewelry. You should remove all that and ask them not to see down. You have to ask them to stand straight, and then you have to see in the scale. And once the scale is stable, वो सुई घूमती रहती है, पहले थोड़ी देर हिलती रहती है, जब वो फिक्स हो जाएगी तब आपको रीडिंग लेना है. वो वेट आपको केजीज में लिखना है और नियरेस्ट टू द 100 ग्राम्स. जैसे 30 kg 100 ग्राम्स, अगर 30 kg 50 ग्राम्स है तो 30 kg विल राइट. So that way you have to take the weight, and after weight you have to take the height also. आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक आ गया ना, उसमें 30.5 भी दिखा देता है. हाँ, उसमें तो और कम दिखाता है और सारा फैसिलिटी हो गया है. सब जगह नहीं मिलेगा. जहाँ ये लोग काम करें, हो सकता है उस कम्युनिटी में वही वाला हमारा पुराना वाला स्केल मिले उनको. इसलिए पुराना मेथड से जानने से नया मेथड तो बहुत इजी है. उसमें तो खड़ा होना है अपने आप, वो फिक्स जब आ गया तब वो नोट कर लीजिए आप. ऐसा ही करके मेजरमेंट ऑफ हाइट के लिए भी है, जो अभी आप कह रहे थे. हाइट मेजरमेंट के लिए भी आपको जो ये मेजरिंग टेप है, पहले हम टेप से करते थे, खड़ा करते थे दीवार पे, फिर निशान लगाते थे यहाँ बिल्कुल ऊपर, और फिर उसको वो लेके मेजरिंग टेप नापते थे. अभी स्केल्स हैं हाइट के लिए जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है. वो भी आपको उसी तरह उनको बोलना है कि अंदर सांस लीजिए, सांस लिया अंदर, उसके बाद आप एकदम वो उसको नीचे ले आइए स्केल को, और फिर हाइट नापिए. इसी तरह ऐसे वाइटल साइंस उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल 4. कोई मुश्किल नहीं है. घर में भी आप लोग टेम्परेचर देखते हैं, और टेम्परेचर घर में ही नहीं, हॉस्पिटल में अगर पेशेंट आ गया तो आने के वक्त, कोई प्रोसीजर के पहले, कोई प्रोसीजर के बाद, ये सब टाइम में हम देखते हैं. और जब हम टेम्परेचर देख रहे हैं उनका, तो फ़ारेनहाइट में, यूजुअली फ़ारेनहाइट में ही देखते हैं. और
आप ओरली देख सकते हैं, आजकल वो भी डिजिटल है, पहले तो थर्मामीटर वो ग्लास वाला था, अभी डिजिटल थर्मामीटर है। आपको टंग के नीचे जो वार्म पॉकेट है उसमें रखना है, कंप्लीट 1 मिनट रखिए, बीप आ गया निकालिए और रीड कर लीजिए। रेक्टली भी देख सकते हैं, रेक्टम में भी अगर कोई परेशानी है, मुंह से नहीं देख सकते, डेंचर्स है, बंद नहीं कर पा रहे मुंह, वो अगर कोई परेशानी है तो आप उसको रेक्टली भी देख सकते हैं। उसमें आपको 1 इंच तक अंदर डालना है रेक्टम में और 1 मिनट के लिए उधर छोड़ना है, फिर रीड करना है। एक्सिलरी भी देखते हैं, एक्चुअली बड़े लोगों के लिए हमको, बड़े और बच्चे दोनों के लिए एक्सिलरी टेम्परेचर ठीक रहता है, उसको भी हम 1 मिनट के लिए लगाएंगे आर्म पिट में और रीडिंग नोट करेंगे। स्पेशल थर्मामीटर आता है जिसको हम जस्ट ईयर में लगाया और वो फटाफट से टेम्परेचर दिखा देता है आपको, वो इंटरनल टेम्परेचर बॉडी का दिखाता है। इसके अलावा आप जो ये टेम्परेचर देखेंगे तो आपको नॉर्मल रेंज पता होना चाहिए कितना है। अगर आप ओरल देख रहे हैं तो 97.6 99, मतलब 1 डिग्री का आप डिफरेंट देखते रहिए। जो ओरल में है तो रेक्टल में 1 डिग्री ज़्यादा रहता है, एक्सिलरी में 1 डिग्री कम रहता है टेम्परेचर, और आपको पता लग जाएगा अदरवाइज भी टेम्परेचर से भी, और गर्म ठंडा छू के भी पता लगता है। तो आपको हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया दोनों पता लगेगा अगर पेशेंट को है तो। फिर उसके बाद आप पल्स देखेंगे। पल्स देखने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है, आप पल्स देखने के लिए अपनी पहली 2 उंगली आप जो यहाँ पे रेडियल आर्टरी है उधर रखेंगे। जब आपको थ्रॉबिंग साउंड सुनाई पड़ने लगेगा तब आप उसको काउंट करना शुरू करेंगे, और 1 मिनट के लिए करें या आप 5 सेकंड के लिए करें, 16 सेकंड के लिए करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। पर हम लोग यही बताते हैं 1 मिनट के लिए करेंगे तो आपको बीच में पता लगेगा किस टाइप से चेंज हुआ, कुछ रेगुलर चेंज है हुआ, कि नहीं, रिदम में चेंज हुआ, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 1 मिनट देख ले, 1 मिनट कोई बड़ी बात तो है नहीं। और उनका नॉर्मल जो रेट है वो हम 16 से 18 पर मिनट देख रहे हैं। आपको जो पल्स का थ्रॉबिंग साउंड पता लग रहा है ऐसा, वो 12 से 18 होना चाहिए। एक्चुअली थ्रू दैट प्रोसेस जो एक इंटरेक्शंस भी काफी हेल्दी हो जाता है, क्योंकि वो कोई आके हाथ पकड़ता है तो उनको अच्छा भी लगता है कि उन्होंने मुझे काफी अच्छा से टच किया। तो वो एक रेपो बनाने की प्रोसेस में भी सीइंग पल्स इज ए वेरी गुड थिंग्स व्हिच इज दे नीड टू कैरी इट आउट। आई थिंक 1 मिनट इज अ वेरी गुड टाइम, सो दे शुड सी दैट पल्स। एंड ब्लड प्रेशर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। जब हम बड़े लोग का ना ब्लड प्रेशर का मशीन ले जाते हैं ना, ब्लड प्रेशर देख लिया तो उनको लगने लगता है कि अब मैं ठीक हूँ, या ये डॉक्टर, नर्स या हेल्थ केयर असिस्टेंट या जेरियाट्रिक केयर असिस्टेंट्स काम कर रहा है कुछ। तो जब हम ब्लड प्रेशर देखते हैं तो एक तो लेफ्ट हैंड में कफ बांधे और कफ को ये जो जॉइंट है इसके ऊपर बांधेंगे आप, 2 उंगली ऊपर बांधेंगे जॉइंट से लेफ्ट हैंड में। बांधने के बाद कंफर्टेबली रेस्ट करना चाहिए, उसको ऐसा लटका हुआ छोड़ नहीं सकते हैं आप, कंफर्टेबली रेस्ट करें वो एक किसी सरफेस पे स्ट्रेट पे, और फिर आप ब्लड प्रेशर देखना शुरू करें। कफ टाइटली बांधने के बाद आप वही पल्स जैसे पहले देखा था, आप वो पल्स देखेंगे और फिर उसमें एयर फिल करते हैं। जब वो पल्स बिल्कुल बंद हो गया, आपको नहीं पता लग रहा है, उस पॉइंट पे आप रुक जाइए और फिर रुक के आप उसमें थोड़ी सी हवा 10-20 mm ऑफ Hg और भरिए, और फिर धीरे धीरे हवा को रिलीज़ करना शुरू करिए। स्टेथोस्कोप आपने यहाँ रखना है और पल्स सुनना है। जब ये आपको साउंड वापस सुनना शुरू होगा तब आपको वो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक हो गया। फिर जब फिर से गायब हो गया एक पॉइंट पे आके, वो आपका डायस्टोलिक हो गया। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है हम 120/80 करके लेते हैं, और अगर उनको ज़्यादा ब्लड प्रेशर आ रहा है जैसे 129 और नीचे वाला 80 या 130 139 हो गया 130 से, एंड 89 हो गया, फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज में 140 और हायर एंड डायस्टोलिक 90 और हायर। तो इन स्टेज 1 स्टेज 2 प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में भी हमको एज अ GCA रिपोर्ट करना चाहिए। लिख के उनको रिपोर्ट करना है कि ये थोड़ा सा अब 80 के जब भी ऊपर जा रहा है या 120 के ऊपर जा रहा है। उनको अपने पास से नहीं सोचना है कि अब मैं क्या करना है, उनको दवाई नहीं देना कोई और कुछ नहीं करना है, उनको खाली रिपोर्टिंग करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है और आगे इन्फॉर्म करना है। कई बार प्री कंडीशन जो होता है, मतलब जब ब्लड प्रेशर लिया गया उसके जस्ट पहले वो क्या कर रहा था, वो भी कई बार इम्पोर्टेंट है। सपोज कोई
मेहनत करके आके बैठ रहा है और इमीडिएटली हमने ले लिया विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, इन दैट केस ऑल्सो ये सब जो प्री कंडीशंस है वो सब भी जो ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड कर रहा है उनको बिल्कुल पता होना चाहिए, सो दैट क्या ये जो असेसमेंट है, क्योंकि हर टाइम में डिफरेंट रिजल्ट हो सकता है कि आ जाए। और आजकल दिन में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट आ गया, कई बार आप टाइट बांधते हो, कई बार लूज बांधते हो, 3 रीडिंग लीजिए आप, 3 रीडिंग अलग दिखा देगा। इसका कई बार आप बिठा के लेते हो, कई बार लेटा के लेते हो, तो उसमें तो आप हाथ ऐसा रखा या हाथ ऐसा रखा या उसमें भी फर्क आ जाता है। तो उसको मतलब कि जो भी ले रहा है उसको थोड़ा सा इस चीज को समझना है कि डिफरेंट कंडीशन से आपका रीडिंग डिफरेंट होता है, और जो प्री कंडीशन वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी उनको मन में रखना है। अदरवाइज, और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक में अगर 2 बार नापने से भी 10 से ज्यादा होता है, देन थर्ड लेके 3 का एवरेज करना है। वो सब करने से मेरे ख्याल से हम एरर को थोड़ा मिनिमाइज कर सकता है, सो दैट वी कैन रिपोर्ट अप्रोप्रिएटली। बिल्कुल सही कहा आपने। जो इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं उनमें स्पेशली 3 बार ले लिया, अगर आपको 10 से ज़्यादा का फ़र्क 2 रीडिंग्स में आ रहा है तो ज़रूर लें और उसका एवरेज निकालें। और एक और बात इम्पॉर्टेंट है, एल्डरली को अगर मैंने उसके कमरे से लेके बाहर वाले कमरे तक, बेडरूम से वहां तक बुलाया, उतने में भी सांस चढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर फर्क। तो ये रूल बनाते हैं हम कि कम से कम वो 15 मिनट आराम से बैठ गया, उसके बाद ही आप ब्लड प्रेशर ले लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने मुझे याद दिलाया, थैंक यू। अच्छा, आजकल कई सारा जो इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन हाथ में रिस्ट वाला आ गया जो कि वैलिडेटेड नहीं हुआ, अभी भी ठीक नहीं है। तो बेसिकली आर्म वाला जो है वो तो है, लेकिन आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि बाजार में बहुत सारा मशीन आ रहा है जो कि रिस्ट में बांधते हैं, वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उससे अभी भी ठीक से पता नहीं हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई, जो हम ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन रह गया। रेस्पिरेशन लेने के लिए आपको चेस्ट राइज देखना है, जितना नंबर ऑफ काउंट करना है आपको 1 मिनट में, कितना बार राइज है, वो आपका हो गया रेस्पिरेशन। और नॉर्मल रेस्पिरेशन आपका 16 से 20 है एल्डरली के लिए, वो आपको नोट करके लिख के रखना है। रेस्पिरेशन में भी सेम बात ख्याल करना है, अगर उसका सांस चढ़ा हुआ है तो पहले बिठा के थोड़ा देर रेस्ट के बाद 10-15 मिनट बाद ही लें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन एज वाला जो एल्डरली पेशेंट्स और या लोग हैं, ये लोग कभी अगर खाए नहीं, शुगर है, इनका ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस हो जाता है। कई बार बात बोलते बोलते इमोशनल्स भी हो जाता है, दैट आल्सो अफेक्ट बेसिकली आपका जो पल्स और बीपी, उसको भी थोड़ा सा देखना है। कॉन्शियसनेस लेवल देखना चाहिए कि वो अलर्ट हैं, आपका बात करने से वर्बल कमांड में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं वो, और या खाली जब आप पेन करते हैं तब कुछ बोलते हैं, या कई बार होता है कि आप पेन भी दे रहे हैं तभी भी वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो क्या लेवल है उसका अलर्टनेस का, वो अपने आप रिस्पॉन्ड कर देता है तो बिल्कुल ठीक है कॉन्शियसनेस लेवल। और अगर नाम बुलाने से या बोलने से आपके 2-3 बार तब बोलते हैं तो इसका मतलब रेस्पॉन्स टू वॉइस, वी विल से he is responding to voice, responds to painful stimuli or not at all responding. This is very important to know. And there are changes in their emotional behavior, communication pattern and appearance. Sometimes you will find that the person was very bubbly, very jovial kind of person, but suddenly has stopped talking to people, or he was very smart, dressing up nicely, but nowadays very shabby, not dressing up properly. So we need to pay attention to these kind of changes in their behavior. That signifies that something they are undergoing which they are not able to express. Vitals, their physiology is fine, intact, they are healthy in that sense, they are eating, but they are not emotionally sound and they are having some problem with their thought process or with their emotional status. And in this case, what is the role of a GCA is that try to find out whether there is any problem, is there adjustment problem, or there is some other problem in the family, finance, or children. There are a lot of problems which they undergo, or he was very independent and now because of some limitation not able to perform those daily activities, therefore he is feeling depressed
and he is not able to adjust himself to these changes. Therefore, we need to pay a close attention to their emotional status, their communication, their walk, their talk, their other habits which they were having earlier, and their other habits as GCA. You may not be knowing that what they were doing. In that case, you can talk to other family members as well, because they will tell you that he was very good, very jovial in nature, but now he doesn't talk much. He doesn't even open the television. The serials which he was liking, he's not watching those. All these things suggest that instead of needing the physical care, he needs very much your counseling, support and emotional care. I think most of the time जो हमारा geriatric group of people, they don't have this kind of physical or physiological disease, rather than they may be having some social issues, which as you said different kind of things, जो पहले करता था वो अभी नहीं कर रहा है, तो वो हमें एक्चुअली समझना है. कई बार जैसे आपने बताया कि हो सकता है उसके दोस्त से बात करना पड़े, और आजकल सोशल आइसोलेशंस में क्या होता है कि परिवार के लोग भी आसपास नहीं होता है, तो उनके जो पड़ोस में रहते हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि पहले तो ये मॉर्निंग वॉक जाता था, आजकल मॉर्निंग वॉक भी जा नहीं रहा है. तो ये सब जो कंपोनेंट है, आई थिंक हमारा जो असेसमेंट प्रोसेस इज नॉट ओनली कि आपने पल्स देख लिया, बीपी देख लिया और रेस्पिरेशन देख लिया. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. इट इज ए वन ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच, जिससे हम ये आइडेंटिफाई करें. और इसी के साथ ही एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस का भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, हम जब भी विजिट करें या जब भी मिले, सो दैट वी कैन कंपेयर विद द अर्लियर रिकॉर्ड, जो कि हमें ये असेसमेंट प्रोसेस में फैसिलिटेट करे. और जैसे आपने सबसे पहले बताया कि हम जो भी कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि हम उनकी कुछ मदद करने की स्थिति में नहीं है, तो वो खुल के कभी नहीं आएंगे. बिल्कुल ठीक. तो हमें उसको ये एहसास दिलाना है, ऑल दीज थिंग्स वी आर डूइंग जस्ट टू हेल्प यू. तो ये जो कॉन्फिडेंस दिलाना है, दिट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब, लेकिन यही अगर आपका प्रोफेशन है, आपका जॉब है, देन वी हैव टू कैरी आउट सो दैट वी कैन मेक आवर एल्डर मच इन अ कंफर्टेबल जोन. बिल्कुल. तो आज हमने जो ये बताया कि उनको रिकॉर्डिंग जो करना है, रिकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसा कि आपने कहा, जो भी उन्होंने हाइट, वेट, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और उनका ऑल्सो इमोशनल स्टेटस जो देखा, वो नोट करें. अभी आपको लग रहा है कि मुझे तो याद ही रहेगा, लेकिन आप ही के लिए नहीं है, वो अगर कहीं और दिखाने जाना है. लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट दे वर alert to your commands. They are able to remember the words which you are, or the conversation which you are having. So record all these things clearly and keep it with you, as well as in his bag or wherever he is keeping his things. That also should be there. And they need your empathetic ear. Listen to whatever. We should not be in hurry when you are collecting history or when you are doing examination with elderly. One more important characteristic which we have to learn is we have to be very patient, and we need to give them time. Sometimes they will tell you a single sentence after speaking 10-12 things. After that you will be able to reach to important one sentence which you were trying to find out. Don't get bothered on that or irritable. You need to have lot of patience when you are dealing with elderly. And assessment and history and your recording also needs your patience with them. You cannot ask them, just change, remove your clothes, I have to take your weight. No, you have to give them time to remove those clothes, take a deep breath, relax, and then come for the assessment. So these are very, very important things, I must say. And it is actually a pleasure that आपको ये मौका मिलेगा कि एल्डरली के साथ काम कर पाएंगे, क्योंकि जब आप उनसे बातें करेंगे तो आप इतना कुछ सीखेंगे भी उनसे. उनकी मदद तो ज़रूर कर पाएंगे, लेकिन उनसे बहुत कुछ आपको उनके एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए भी मिलेगा. इसलिए पेशेंस रखने में कोई, आई थिंक जो लास्ट में आपने बात कही, ये हमारा फ़ायदा के लिए ही हमें जो मौका मिल रहा है एक बुज़ुर्ग की मदद करने में, और उनसे इतने कुछ सीखने को होता है, और वो सिखाते भी हैं. ज़िंदगी का उनकी इतने तजुर्बे होते हैं, इतने एक्सपीरियंस होते हैं. सो हियर
today we have discussed about this the psychiatric not depression basically Scale. depression scale as well as जो vital measure करना है जैसे temperature हुआ, height हुआ, weight हुआ, blood pressure हुआ, respiratory हुआ, तो ये सब और alertness. तो ये जो हमने एक मेज़र किया जो वाइटल साइंस वो कब नॉर्मल है, कहाँ पे रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट करना है, वो सब हमें प्रॉपरली आना चाहिए. एंड टुडे वी हैव डिस्कस ऑल दिस डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द पेशेंट जीरियाट्रिक पीपल्स असेसमेंट एज वेल एज द reporting system. So here we would like to say thanks to Professor Manju Chugani coming here in this studio and taking out your time and helping our students to understand this assessment process. Here I would also like to say thanks to our EMPC team who is helping us to broadcast these discussions to our students. And at the end, all these students, thank you very much to all of you. I hope you are getting benefit out of this discussion. Thank you very much to all of you.